Girls, you are equal to the boys. Believe in yourself. Your struggle should not come down. Your determination should soar high. Your commitment towards your work, towards your family, towards your children should always be your priority. Don't compromise on that. Believe in yourself. You'll get the stars, you'll get the moon, you'll get everything that you desire, but believe in yourself. And rest not till you reach. मैं सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को और सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग आप जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। हम सभी को मिलकर एक इतिहास बनाना है, एक सुंदर राष्ट्र बनाना है, अपने भारत देश को बहुत आगे ले जाना है, उन्नति की शिखर पे ले जाना है। इसलिए आज ही से हम ये प्रण लेंगे कि हम लोग अपनी बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, साथ ही बेटे को सिखाएंगे, समझाएंगे। नारी का जो सम्मान है वो उसके लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आज से यही संदेश घर घर में अलख लेके हम जगाएंगे कि खुद भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रखेंगे, सबको बराबरी का दर्जा देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की परवरिश पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह का सब तरफ माहौल हमारे सामने है, और मैं हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर रही हूँ भारतीय संस्कृति की, संस्कारों की। संस्कार चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सही तरीके से संस्कार दिए जाएंगे तो हम जो क्राइम रेट्स की बात करते हैं समाज के अंदर, वो भी कम हो जाएगी। जैसा कि किसी भी नियम कायदे से कभी भी जो अपराध है वो कम नहीं हुए, अपराध तभी कम होंगे जब समाज के अंदर एक अवेयरनेस आएगी। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी फर्स्ट ड्यूटी जो है बच्चों को सही संस्कारित करने में लगाएं, और हमारी संस्कृति के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विश्व गुरु बनने से भारत देश को कोई नहीं रोक सकता। My message is that set your goal high and keep working towards it, and you will be there, you will reach there. I would really like to say that it's important to believe in your own self. When we pick up one finger at others, 4 are pointing towards us. Women feel that their report cards is always with the man, and she tries to get, she tries to expect marks as how she is as a mother, as a wife, as a daughter-in-law. एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड महिलाएं अपने पास लेकर चलती हैं, और हम उनको लगता है कि अगर आज मैंने खाना नहीं बनाया तो मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, आज मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं तो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं हम खुद उन नंबरों की अपेक्षा करते हैं और वो पेन थमा देते हैं किसी और के हाथ में। My request is that you do not have to feel guilty of doing things as per your own wish. Happiness is not an activity. Happiness is like a salt in the ocean. If you're in water, at times you'll be happy, at times you'll be unhappy. It is a way of life. So believe in your own self and try to do things which please you. Try to do things which make this beautiful fabric of our own country, of our own society, of our own well-being. Through this video today, I would like to tell all the women out there and the young girls, never stop dreaming, always work hard towards your goal. Once you are sure of your goal, I don't think anything in the world can stop you. Everything will come and fall into place if you believe in yourself. Believing in yourself is the most important thing, and then I think everything comes around. You will get the support you need from the people around you, your life partner, your parents and everyone. So the most important thing is to believe in your dreams and work hard towards them. That's the most important thing for me. It is, and what has helped me to be where I am today. As it is about inspiring women, I think that is what we should be letting the younger generation know about where we are today. We've seen a lot what we've gone through. There's been past, there's been struggles and ups and downs.
So girls of today, I think you're very lucky to have come in the world where, well, the world has come forward. So please value yourself, take great pride in who you are, be focused, be nothing less than fierce, and follow your goals in the best possible way, and I'm sure sky's the limit for you all. And for the society, one thing that I'd really like to make a request and probably welcome each one of us living in the society, be it a man, be it a woman, be it a girl, be it a child, be it a boy, everybody, the older generation, the younger generation. I think it's important that we all need to look ourselves as equals, give privileges and importance to where every human and mankind is needed. We've seen 2020 as probably a game changer for all of us. It's been one of the toughest years that any mankind could have seen. It's taught me the bond and the love that I have for my family, and I think this is the time that we all have realized to introspect what is there within ourselves and appreciate that we have today. So it's important to make a better world today so that our children can get a better world tomorrow. When we talk about women empowerment, I personally believe that we all women should feel empowered, and empowerment has straight relation with being financially independent. A woman cannot be empowered when she is not financially independent, and being to be a financially independent woman, you need to really get the right kind of knowledge, education and skills. So I strongly believe that equal opportunities of education, right to become self-reliant should be given to all women, and we should create awareness that the women should not be deprived of being empowered women, and we all need to collectively work towards it. It's often said that there's a woman behind every man's success. So the case is with women. If any woman is successful, would definitely have some support, unconditional support of the people, men especially, around her. So definitely it go hand in hand. My personal case is that I got married at the age of 18 after my 12th. I studied because my family supported, my husband supported to continue my education for next 10 years. And whatever I am, it's because of my husband. तो एक समाज में शुरू से सदियों से एक चीज़ चली आ रही है कि महिलाएं जो हैं वो घर के काम संभालती हैं और पुरुष जो है वो बाहर के काम संभालता है। एक बटा हुआ सिस्टम था, चला आ रहा है, कुछ घरों में आज भी है। तो इसमें उसको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि परिवार में महिलाएं जो हैं वो बच्चों को बड़ा कर रही हैं, उनका देखभाल कर रही हैं। एक सिस्टम चल रहा है, सब में एक सामंजस्य है और एक हेल्दी वे में सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, अपनी काबिलियत के बल पे वो आगे आ रही हैं। आप उसको भी पीछा नहीं, उसको पुरानी परंपराओं के नाम पे उनको बलि नहीं चढ़ा सकते, उनको आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। उन्हें जो अवश्य आगे आना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उन्हें आगे, गर्ल्स पायलट बन रही हैं, दे आर गोइंग इन स्पेस, दे आर डॉक्टर्स, दे आर सर्जन्स, दे आर डूइंग वेल इन द सोसाइटी, बहुत अच्छा काम करें सोसाइटी में। ऐसे में उन्हें क्या होता है, जनरली तुहरी मार का सामना करना पड़ता है। उन्हें परिवार के मोर्चे पे भी लड़ना पड़ता है और जो वर्क है, काम का जो स्थान है, वहाँ भी उन्हें पूरी शिद्दत से अपना काम करना पड़ता है। तो इसका कारण ये होता है कि मैं इस बात से 100% एग्री हूँ, वर्किंग वुमेन को वर्क प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ता है, घर का, सामाजिक और परिवार के तक सब चीज़ों को उसको डबल फेस करना पड़ता है। अब ये चीज़ें जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, जो हमारी नई सदी आएगी या आने वाला जो वक्त आ रहा है, इसमें जिस तरह सब काम करेंगे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो परिवार में बच्चे भी होंगे, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी। तो उस समय मुझे लगता है कि आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाएगी कि उसका कोई ना कोई हल निकालने की हमें ज़रूरत महसूस होगी। ये बिल्कुल हकीकत है और काफ़ी बदलाव आए भी हैं कि कई पुरुष घर में काम करने लगे हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं तो बराबर काम भी करते हैं, साथ भी देते हैं, ऐसा भी है। पर कई जगह जो आज भी रूढ़िवादी सोच है कि उसमें पुरुष इतना साथ नहीं देते, उस परिवार में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उन्हें घर के मोर्चे पे, बाहर के मोर्चे पे और सामाजिक मोर्चे पे, प्लस उनके मन में एक गिल्ट रहता है कि मैं अपने बच्चे को उतनी अच्छी केयर नहीं दे पाई। कई बार उसका बच्चा बीमार है और वो ऑफिस जा रही है, उसको बार बार रह के बार बार अपने बच्चे को संभालने का मन करता है, लेकिन दूसरी तरफ
ऑफिस में जो बॉस है उसने जो टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करके आगे प्रमोशन के लिए भी उसका एक एम होता है। तो इसमें आप महिला को गलत नहीं समझ सकते, उसको 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। शी इज़ अ फाइटर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग women are more strong than a man. I think we need to all bring up our kids in a equal and harmonious environment wherein men and women, wherein boys and girls are treated equally. They are both taught to respect the opposite gender, and only then can we actually talk about women empowerment. मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के समय का अगर हम इस माहौल को देखें तो इंसान हर तरफ भागता जा रहा है, पता नहीं उसकी किस चीज़ की तलाश है और ये भागम भाग उसकी कब ख़त्म होगी। जबकि देखें तो सुकून उसके आसपास ही है। अगर वो अपने घर में रहकर या घर से बाहर निकलकर अगर सिर्फ अपने घर के बाहर की सड़क की तरफ ही देख लेगा तो भी वो सुकून हासिल कर सकता है। पर्यावरण का जो है इस वक्त समय देखा जाए तो बहुत अधिक विकास की ज़रूरत है पर्यावरण के लिए। घर पर प्लांट्स लगाएं, बाहर लगाएं। सड़कों पर देखिए गर्मी के दिनों में इतनी धूप होने लगी है, लेकिन हम लोग उसी के नीचे से कार ड्राइव करके ले जाते हैं जहाँ लगता है कि अरे साइड से ले लो, यहाँ बड़े अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देखने जाए तो बहुत ज़रूरत सब बन गई है आज के समय की। पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, उनमें पक्षी रहते हैं। आज के समय में बच्चे लोग जो कि जानते नहीं हैं, एक समय में गिलहरियाँ हमारे घर के अंदर चक्कर लगाती थीं, जहाँ उनको ज़रा भी मिट्टी दिखती थी, ज़मीन दिखती थी तो गिलहरियाँ अपने घर बना लेती थी, पेड़ों के ऊपर घर बना लेती थी, लेकिन अब मिट्टी रही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं पौधे लगाने, पेड़ लगाने से ही होगी। रही बात ऑक्सीजन, तो देखिए आज इस समय जबकि आप सब ने देखा कोरोना महामारी विश्व रूपी समस्या जो हमारे सामने आकर के पैदा हो गई है, अभी तक हम उससे निजात नहीं ले पाए। आप इसी को देखिए, ऑक्सीजन की वैल्यू और ये महामारी और पर्यावरण किस तरह का संबंध है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की वातावरण को शुद्ध रखने की, ऑक्सीजन बना के संभाल के रखने की। इसलिए मैं चाहूँगी कि पर्यावरण पर ध्यान दें और सब तरह से सुकून घर में ही है। इस महामारी ने हमें सब बता दिया कि बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सुख सुकून आपको घर में ही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय पर उठें, समय पर सोएं, दिन के सारे जो अपनी जीवनचर्या है उसको सब समय पर बिताएं। बस यही मेरा संदेश है, आशा है आपको ठीक लगेगा। Society, I think especially now that we're talking about empowering girls, I would say that keep your focus on your goal. If you feel that you're doing the right thing, then don't let other people tell you otherwise and take control. Believe in your. हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इस पे मेरा ये कहना है कि यदि हमारा समाज और हमारा पुरुष प्रधान समाज जब महिलाओं को सहयोग देंगे और उनको अपने साथ रखकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाने का प्रयास करेंगे तो महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, उनसे ज़्यादा काम कर सकती हैं, उनसे आगे बढ़ सकती हैं, उनके बराबर चल सकती हैं। मेरा इतना सा कहना है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट बिल्स जो बनाए जाते हैं उनको सच्चे मायने में अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए हम पुरुषों को भी जो है महिलाओं का साथ भरपूर देना पड़ेगा। बस यही कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात मैं बहुत दिन से कह भी रही हूँ, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी कह रही हूँ कि जो नाबालिग बच्चियाँ हैं ना, उनके साथ अगर रेप होता है तो उसकी रिपोर्ट और उसका निर्णय 72 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए और ये कानून का प्रावधान होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा कानून नहीं आएगा तब तक हमारी बच्चियां कभी महफूज नहीं हो सकती हैं। एक बच्ची के पिता से पूछिए, एक बहन के भाई से पूछिए कि ना सिर्फ हम लड़कियों से बल्कि उनसे भी पूछिए कि उनको बच्ची पैदा करने से डर क्यों लगता है। सिर्फ इसलिए कि कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो भी जाता है तो हमारे समाज में न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये मेरी न्यायपालिका से और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चीज़ को आगे बढ़ के लें। और दूसरी बात, समय के अनुसार चलिए, समय आपके अनुसार चलना शुरू कर देगा। थैंक यू। एक मैसेज जो मैं सारे लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर हम चाहते हैं सच में समाज में बदलाव हो, और ये जो एक सोच से हम लड़ रहे हैं कि लोगों की बहुत गंदी सोच है कि लड़के और लड़की में फ़र्क करते हैं, साथ ही
ऐसा बचपन से सोच लेते हैं कि भाई लड़की है तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हम जब वो बच्चे छोटे हों तो उनको एक घर में ही ये चीज़ सिखाना शुरू करें कि चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका भाई है, आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। और लड़के और लड़की को सेम चीज़ें सिखाएं। अगर आप उसको मार्शल आर्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, तो आप वो लड़की को भी सिखा सकते हैं। और दोनों को बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। ऐसा बचपन से एजुकेशन उनको ना दें कि बड़े होके वो एक दूसरे में भेदभाव करें और ये समझ लें कि नहीं, ये तो मेरी बहन है, इसको 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज में बच्चा बाद में आता है, कुछ बचपन के जो साल होते हैं 3-4 साल, वो घर में बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उस समय सीखना शुरू करता है, जिस समय हमें ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अपने बच्चे को सिखानी चाहिए।